Hello everyone and welcome to NK Law classes. Welcome to NK Law classes. Today we are going to start with interpretation of statute subject, which is there in LLB semester 5, BLS semester 9 of Mumbai University curriculum. Today we'll be doing the part 1. This subject is very important and crucial subject of all the 4 subjects of the semester. And today we will begin with introduction part, which is classification of the statute. The name of the subject is interpretation of statute. So first we need to understand what the statute means. So we'll start. Statute, what's the meaning of the statute? Many people have tried to define the word statute, which means the will of the legislature or the act passed by the legislature, or maybe we can say it is made by the parliament or state legislature. If it is made by parliament, then it would be central act. If it is passed by the state legislature, then it would be state law. So basically legislature जो act pass करता है, that is nothing but the statute. Like you people have already studied Contract Act 1872, Indian Penal Code 1860, Partnership Act 1932, like that. These all are statutes. Now we will directly go for the classification of the statute based on 3 categories, or based on the object, or based on 3 different perspectives. Statutes have been defined into these 3 categories based on the object, based on the duration, based on the application. So we'll see first classification, statute which are classified based on the object. So based on the object में बहुत सारे type है, around 12-13 types are there. So उसमें से first one is procedural statute. Procedural statute मतलब जिसमें procedures लिखी गई है, which you are going to study in your this semester, like CPC, Civil Procedure Code, CRPC, Criminal Procedure Code, Evidence Act, which you are going to study in the next semester. तो इन सब एक्ट्स में क्या दिया है, प्रोसीजर्स लिखी हुई है. सो दीज आर कॉल्ड प्रोसीड्यूरल स्टैट्यूट. दूसरे होते हैं सब्सटेंटिव स्टैट्यूट. सब्सटेंटिव मतलब लाइक कंपनी लॉ, फैमिली लॉ, टोपा, लैंड लॉ, जिसमें सब्सटेंस दिया हुआ है. प्रोसीजर इज नॉट द मेन एलिमेंट बट द सब्सटेंसेस. Hello. Yes guys, sorry. So substantive laws वो होते हैं which are like company law, family law, TOPA and all that, जिसमें substance दिया हुआ है. So this is actually very broad classification. एक होता है procedural law, एक होता है substantive law. उसके अलावा there are other laws like penal laws और penal statute जिसमें punishment दी जाती है, like IPC, Indian Penal Code, नाम ही बता देता है, या तो POCSO जिसमें children के against कुछ abuse वगैरह होता है तो उसकी punishments वगैरह है. So typically these are the criminal laws जिसमें penalties वगैरह दी हुई है. Taxing statute like Income Tax Act, GST, then Wealth Tax वगैरह जो था वो abolish हो चुका है अभी. Then Repealing Act, Companies Act 2013, it has repealed the old Companies Act 1956. Competition Act 2002, it has repealed the MRTP Act, Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969. तो ये कौन सा एक्ट हो गए आपके, रिपीलिंग एक्ट हो गए. अमेंडिंग एक्ट, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019. तो बेसिकली क्या होता है ना, जो मेन स्टैट्यूट है, मेन एक्ट है जिसको पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है, उसके अंदर एक वर्ड भी अगर चेंज करना है ना, तो अगेन द सेम प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड, व्हिच यू पीपल हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन. 3 राउंड्स इन लोकसभा, 3 राउंड्स इन राज्यसभा, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, उसका सिग्नेचर चाहिए. उसके बाद में जैसे बिल में से एक्ट बनता है, सिमिलरली एक सिंगल वर्ड भी स्टैट्यूट में अगर चेंज करना हो तो सेम प्रोसीजर हैज टू बी कैरिड आउट. तो वो कैसे होता है, अभी आपको पूरा एक्ट तो चेंज नहीं करना है, कुछ कुछ वर्ड्स ही सब्स्टिट्यूट करने हैं, कुछ कुछ वर्ड्स ओमिट करने हैं, व्हाटएवर चेंजेस यू वांट टू मेक इन द मेन एक्ट, तो वो अमेंडमेंट एक्ट पास करके होता है. तो कंपनीज एक्ट 2013 जब से पास हुआ है ना, तब से लेके अभी तक ना ऐसे बहुत सारे
अमेंडमेंट एक्ट पास हो चुके हैं. Apart from that, some interesting things I want to throw light on. Highlights of the Repealing and Amending Act. एक ना Repealing and Amending Act भी होता है. 2019 वाला तो हालांकि ये भी लेटेस्ट था. उसके पहले भी प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे हो चुके हैं. उसकी certain important things. This is the Act of Parliament of India. It has repealed 58 acts. ये act के through 58 acts Parliament ने repeal कर दिए हैं. This act was the sixth such repealing act aimed at repealing obsolete laws by the Modi government and the first tabled during its second term of 1924. So basically, कौन से एक्ट रिपील हो जाते हैं इससे जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं ना लॉ, पुराने 150-200 साल पहले ब्रिटिशर्स ने जो लॉ डाले हैं या तो 100 साल पुराने लॉ जिसका आज की डेट में कुछ एप्लीकेशन ही नहीं है, उस लॉज को निकालना है तो लॉज एनी एक्ट विच इज नॉट इन यूज विल नॉट डाई ऑटोमेटिकली, उसको रिपील करना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाई दिस एक्ट वाज देयर. एंड 58 एक्ट कुछ ये गवर्नमेंट के आने के 100 डेज के अंदर ही दीज पीपल हैड रिपील्ड 58 एक्ट. The more astonishing fact is that the government during its first tenure 2014 से 19 का जो tenure था उसमें this government has repealed 1428 such obsolete acts. उसमें से कुछ एक्ट्स तो इतने जबरदस्त थे ना कि जिसमें गवर्नमेंट का बहुत कुछ लायबिलिटी हो जाता था लोगों को कुछ पे करने का एंड ऑल दैट. मतलब दोज एक्ट्स वर एक्चुअली काइंड ऑफ अ डेंजरस एक्ट. So 1877 central laws were identified during the 2014 campaign of this government. जब वो लोग 2014 इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे ना तभी लोग ने इतने एक्ट को फाइंड आउट किया था कि अगर हम लोग पावर में आएंगे ना ये सब एक्ट को रिपील करने की जरूरत है. और उसमें से 1428 दे ऑलरेडी हैड रिपील्ड इन द फर्स्ट टेन्योर, 58 सेकंड में हुए हैं. सो दिस वाज जस्ट फॉर योर नॉलेज रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट का. Next, we go ahead with the classification on the basis of object. Codifying Act. Codifying मतलब जो कोड होते हैं वो like your IPC Indian Penal Code, CPC, CRPC Civil Procedure Code, Criminal Procedure Code. Act और कोड में फर्क क्या होता है? As such तो देखने जाओ तो जितने भी कोड होते हैं वो भी सब acts ही होते हैं. So as such there is no difference between the act and the code. The thing is that code is complete in itself. कंप्लीट इन इटसेल्फ का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर कोड में पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर की सभी चीजें आ जाती है. मतलब आपको सिविल कोड के रिगार्डिंग कुछ भी प्रोसीजर कुछ भी देखना है, यू डोंट हैव टू ओपन एनी अदर एक्ट. एक सीपीसी देख लिया आपको सब क्वेरीज आपकी उसमें से ही सॉल्व हो जाएगी. सेम गोज विद सीआरपीसी. सो दैट मेक्स इट अ कोड. समझा? इनफैक्ट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट अगर आपको बोनस के रिगार्डिंग कोई चीज देखनी है ना, यू जस्ट हैव टू रेफर वन एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट. ग्रेचुइटी रिलेटेड कुछ आपको देखना है, यू जस्ट हैव टू ओपन वन एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट. और कुछ आपको खोलने की जरूरत नहीं है. सो दैट दीज टू एक्ट्स आर आल्सो इन अ वे कोड. इवन कंपनीज एक्ट इन अ वे इज द कोड, क्योंकि कंपनी रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए, यू जस्ट हैव टू स्टडी वन एक्ट, दैट इज कंपनीज एक्ट. देन कम्स द कंसोलिडेटिंग एक्ट. कंसोलिडेटिंग एक्ट का मतलब क्या होता है कि एक्ट जिसने कंसोलिडेट करी हुई है चीजें. द बेस्ट एग्जांपल वुड बी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. वी ऑल आर अवेयर अबाउट जीएसटी क्योंकि 2-3 साल पहले इंप्लीमेंट हुआ है, रादर 3 साल पहले उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ. फ्रॉम दैट डे इन द होल नेशन इट्स ओनली जीएसटी द मोस्ट टॉक्ड अबाउट लॉ. इस एक्ट ने क्या किया, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस वाले एक्ट है ना, लाइक योर वैल्यू एडेड टैक्स का, वेट का एक्ट, सर्विस टैक्स, अलग अलग स्टेट के वेट एक्ट वगैरह जो थे, उन सबको कंपाइल कर दिया एक ही एक्ट में, दैट इज जीएसटी. तो पहले क्या होता था, जो ट्रेडर्स वगैरह होते थे ना, दे हैड टू फॉलो एन नंबर ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्स के लॉ. सर्विस टैक्स भी करो, वेट भी करो, स्टेट वेट भी करो, ये भी करो, वो भी करो. नाउ एवरीथिंग इज गॉन. They have to refer only one act, which is GST, be it at a central level, be it at a state level. So that is how it is a consolidating act, क्योंकि उसने सभी indirect tax को consolidate करके एक ही act में convert कर दिया है. Then comes the declaratory act. The declaratory act is this kind of statute does an act of removing doubts, clarifying and improving the law based on the interpretation given by either the court or which might not be suitable from point of view of the parliament. अभी कैसे होता है ना, first I'll take you through the example and then I'll explain what does it mean. Income tax amendment act का एक example है. The definition of the house property
was amended under this Amendment Act through the judgment of the Supreme Court. तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट था ना, इट इज अ डेक्लेरेटरी एक्ट, क्योंकि वो एक्ट से क्या हुआ, हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी डाउट थे वो रिमूव हो गए, उस पर क्लैरिफिकेशन मिला, और जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट था उसके अंदर क्या हुआ, कुछ क्लैरिफिकेशन मिला, उसमें इंप्रूवमेंट हुआ. कैसे मिला? बिकॉज ऑफ द इंटरप्रिटेशन विच वॉज गिवन बाय द कोर्ट. इन दिस केस इट वॉज द सुप्रीम कोर्ट. तो जो पार्लियामेंट कभी कभार क्या करती है, लैक कर देती है, कोई चीजें में ड्राफ्टिंग की एरर वगैरह हो जाती है, या तो एम्बिग्विटी रह जाती है एंड ऑल दैट. सो दैट टाइम कोर्ट विल कम एंड गिव इंटरप्रिटेशन, जिससे डिक्लेरेशन वगैरह क्लियर होते हैं. डिक्लेरेशन मतलब होते हैं कि अच्छा इसका मतलब यही होता है, डाउट से मुझे क्लैरिफिकेशन मिल गया. तो अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट विल पास द एक्ट, न्यू एक्ट, इट मे बी अमेंडमेंट एक्ट, इट मे बी सम अदर न्यू एक्ट ऑल्सो. सो दैट एक्ट जिससे डाउट वगैरह सब क्लियर कर दिए, दैट इज द डिक्लेरेटरी एक्ट. Next is explanatory act. So it's generally passed to supply an obvious omission or to clear up the doubts as to the meaning of the previous act. अभी मानो कि कोई एक्ट बना, तभी उसमें कुछ ओमिशंस हो गए हैं, कुछ कुछ चीजों के रिगार्डिंग प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं, या तो कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है इन द प्रीवियस एक्ट एंड ऑल दैट. तो उस केस में कैसा होगा, एक्सप्लेनेटरी एक्ट पास होगा. अनदर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोग ने सबने आईपीसी पढ़ा है तो उसमें एक पूरा चैप्टर ही एक्सप्लेनेशन के ऊपर था. वन चैप्टर वाज डेडिकेटेड फॉर एक्सेप्शन, वन चैप्टर वाज जनरल एक्सप्लेनेशन. तो मतलब एक्ट इटसेल्फ हैड क्लेरिफाइड मेनी थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग ने कंपनीज एक्ट वगैरह का अगर बैरेक्ट कभी पढ़ा है, तो कुछ कुछ सेक्शन के नीचे एक्सप्लेनेशन दिए हुए रहते हैं. मतलब सेक्शन खत्म भी नहीं हुआ है और सेक्शन का कोई पर्टिकुलर वर्ड रहेगा, फ्रेज रहेगा, कोई टर्मिनोलॉजी यूज हुई रहेगी, दैट एक्सप्लेनेशन हैज बीन प्रोवाइडेड देयर इटसेल्फ. सो दैट इज एक्सप्लेनेटरी एक्ट. एनेबलिंग एक्ट. नाउ बाय एनेबलिंग एक्ट द लेजिस्लेचर enables something to be done. It makes doing of something lawful which would not be otherwise lawful. अब इसे enable का मतलब क्या होता है? टू अलाउ टू डू समथिंग लॉफुली. अभी आप लोग ने लैंड एक्विजिशन एक्ट पढ़ लिया है लैंड लॉ में प्रीवियस सेमेस्टर में. अगर गवर्नमेंट को लैंड अक्वायर करना है तो उस केस में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट नीड्स अ बैकिंग और सपोर्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट. अगर ये एक्ट नहीं है तो गवर्नमेंट जो लैंड अक्वायर करने का काम कर रही है ना, दैट विल नॉट बी जस्टिफाइड. वो तो इलीगल एक्शन ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हो जाएगा. So Land Acquisition Act is a kind of enabling act which is enabling government to acquire the land from the people. So would be like your TOPA. अगर आपको कोई प्रॉपर्टी में डीलिंग करना है, ट्रांजेक्शन करना है, तो आपको TOPA will allow you, okay, you can do sale of the property. ओके, सो एनेबलिंग एक्ट में क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो भी एक्ट है वो लीगलाइज हो गया. सिमिलरली टोपा में क्या होगा कि यू वांट टू डील इन द प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन, तो उसमें क्या होगा, द एक्ट ऑथोराइजेस, यू कैन डू सेल, यू कैन डू लीज, यू कैन डू मॉर्गेज, यू कैन डू एक्सचेंज, यू कैन डू गिफ्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो एनेबल किया, so that is enabling act. Disabling act, this is exactly opposite of the enabling act. Like rights which are conferred by the common law are being cut down or curtailed or they are restrained. For example, IPC is in a way disabling act. IPC says अब ये सब चीजें नहीं कर सकते हो because all these things are offenses, और लंबा चौड़ा लिस्ट है offenses का IPC के अंदर. और maybe you can say contract act section 26 से लेके 35 section clearly talk about the contracts which are void, agreement in recent of marriage, trade, legal proceeding, uncertain agreement, wagering agreement. These 5 are void agreements. So act is saying you can't do these type of agreements. या तो लिमिटेशन एक्ट इज ऑल्सो डिसेबलिंग एक्ट विच सेज के बियॉन्ड द पॉइंट आप लोग क्यों किसी को नहीं कर सकते, यू कैन इनिशिएट द लीगल एक्शन. तो इसे क्या किया, डिसेबलमेंट डाल दिया. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिसेबलिंग एक्ट.
And now comes the last classification, which is based on the object, which is remedial. The purpose of these kind of statutes is to promote the general welfare for bringing the social reform through the system. So remedial में कैसे होता है ना कि अभी आप लोग कोर्ट में अच्छा खासा पिटिशन या तो कंप्लेंट तो फाइल कर दिया, you also always have to mention the remedy you seek from the court. कोर्ट को क्या समझेगा आपको क्या रेमेडी चाहिए. मानो कि क्रिमिनल केस है तो फिर उसमें पनिशमेंट के प्रोविजन एक्ट के अंदर ही दिया हुआ है, देयर यू कांट हेल्प इट कि आपको क्या रेमेडी चाहिए. बट ऑफन सिविल केसेस में यू हैव टू सीक फॉर द रेमेडी. सो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आप लोग ने पढ़ लिया ऑलरेडी, विच एम्स ओनली एट द रेमेडीज. सेकेंडली क्या होता है, अभी ये जो रेमेडियल स्टैट्यूट्स है ना, दे हैव द लिबरल इंटरप्रिटेशन एंड दे आर नॉट इंटरप्रेटेड थ्रू द स्ट्रिक्ट मीन्स. क्यों? क्योंकि ऑफन रेमेडियल स्टैट्यूट से ना जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल इज बीइंग promoted. The attempt is that, like आपके जो आप लोग ने लेबर लॉ में पढ़ा है वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट, which is now एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट, the name has been changed, या तो मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट वगैरह से क्या होता है ना कि जनरल वेलफेयर की बातें चलती है कि मैटरनिटी का चलो 6 महीने का लीव फीमेल को मिलना चाहिए. एम्प्लॉयर्स बेसिकली जो वर्क मैन होते हैं, इफ दे आर इंजर्ड और मेट थ्रू द एक्सीडेंट in the course of employment, तो उन लोग को compensation employer को देना पड़ेगा and all that. So that is a kind of remedy they are getting through the help of certain acts. So that is why these are the remedial ones. Okay guys, so this was the first and the basic classification based on the object of the statute. Now comes the next and again very interesting classification, which is based on the duration of the statute. इसमें दो ही टाइप है, ड्यूरेशन है, एक होगा टेम्पररी, एक होगा परमानेंट. टेम्पररी स्टैट्यूट में क्या होता है ना, ड्यूरेशन इज फिक्स. आपको पता है सेक्शन 1 हर एक एक्ट का शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन और एक्सटेंड, ये 4 चीजों के बारे में बोलता है. तो ये जो टेम्पररी स्टैट्यूट रहते हैं ना, उसके सेक्शन नंबर 1 में लिखा हुआ रहता है इसका ड्यूरेशन. और जिस दिन एक्सपायरी होता है सेट ड्यूरेशन का, द स्टैट्यूट स्टॉप फंक्शनिंग, इट एक्सपायर्स, इट डज नॉट ऑपरेट फ्रॉम दैट डे. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टेम्पररी एक्ट वी हैड इन इंडिया वाज टाडा. टाडा आप लोग ने सबने सुना रहेगा, संजय दत्त को जेल हुआ था टाडा में, याकूब मेमन को फांसी हुआ था टाडा में. So it is Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act 87. Its initial term was for 2 years, जो उसके सेक्शन 1 में दिया था. तो उसको चेंज करके 4 साल का किया गया, then 6 and finally it was for 8 years. 8 साल हो गए 1995 में this act lapsed. Okay. Another example is Delhi Tenants Temporary Protection Act 1956, जिसका ड्यूरेशन सिर्फ 3 साल के लिए था, जो एक्ट के अंदर साफ साफ लिखा था. नेक्स्ट इज अ परमानेंट. तो इसमें कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है. तो इट इज अ परपेचुअल एक्ट. जब तक रिपील नहीं होता है तब तक वो कंटिन्यू रहेगा. टेम्पररी एक्ट एक्सपायर होता है. परमानेंट एक्ट को इफ यू वांट दैट एक्ट टू स्टॉप इन फंक्शनिंग, इट हैज टू बी रिपील्ड. परमानेंट एक्ट कभी भी एक्सपायर नहीं हो सकता है. So all the acts you people have studied till date, like Contract Act, all the labor laws and everything, that all are what, मतलब जितने भी एक्ट आप लोग ने अब तक पढ़े हैं, कंपनी, टोपा, लैंड एंड ऑल दैट, आर परमानेंट. ओके, क्योंकि सेक्शन 1 में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था. अब इसी कंपनीज एक्ट 2013, अब इसका शॉर्टर इलेक्शन कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, हाउ इट रीड, द सेक्शन शैल कम इनटू फोर्स एट वंस एंड रिमेनिंग प्रोविजन फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस आते जाएंगे एंड ऑल दैट. कहाँ पे भी लिखा नहीं है कि ये एक्ट ये डेट पे एक्सपायर होगा. इट मीन्स व्हाट, नथिंग इज मेंशन, मतलब दिस इज अ परमानेंट एक्ट. ओके. एंड देन कम्स द थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हिच इज प्राइवेट एंड पब्लिक. प्राइवेट एक्ट मतलब जो पर्सनल मैटर्स के साथ डील करता है, जो आप लोग के ऑलरेडी पढ़ के हो चुके हैं फैमिली लॉज में, फैमिली 1 and 2 में, मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, अडॉप्शन, गार्डियनशिप एंड ऑल दैट. पब्लिक लॉज मतलब इट डील्स विद द पब्लिक पॉलिसी. आप लोग ने अभी तक के बाकी सारे जो एक्ट पढ़े हैं, कंपनीज एक्ट 1-2 पर्सन के ऊपर या रिलीजन के बेसिस पे एप्लीकेबल नहीं होता है. आईपीसी, इनकम टैक्स एक्ट एंड ऑल दीज एक्ट्स आर एप्लीकेबल टू द पीपल इन जनरल. ओके, सो दिस वाज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्ट. 3 टाइप के अपने क्लासिफिकेशन हो गए यहाँ पे.